الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر مجلس میں آپ کے سامنے اس طویل مضمون کا بہت ہی مختصر حصہ عرض کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنوں کو تو چھوڑیے، غیروں کے ساتھ بھی جو حسن اخلاق پیش کیا، تاریخ عالم، تاریخ اسلام ہی نہیں، تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ چند واقعات کے ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف کا، آپ کے اس خلق حسن کا اجمالی تذکرہ پیش کروں گا کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا حسین معاملہ پیش فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر سب سے سخت دن کیسا گزرا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ تیری قوم نے تو مجھے بہت ستایا، لیکن میرے اوپر سب سے سخت دن وہ گزرا جب میں طائف گیا، جب مکے کے لوگوں سے میں مایوس ہو گیا، مجھے یہاں پر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ میں طائف گیا اس امید پر کہ وہاں جا کر میں اسلام پیش کروں اور وہاں کے لوگوں سے اپنی حمایت اور اپنی نصرت کے لیے بات کروں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، طائف کے معزز سردار عبد علیل، اس کا بھائی مسعود، اس کا بھائی حبیب، تینوں سے آپ نے مل کر اپنی بات رکھی، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اپنے مشن کو پیش کیا اور اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی حمایت کی درخواست کی۔ عرب کا یہ مزاج تھا کہ وہ کسی بھی مدد چاہنے والے کو ناکام واپس نہیں کرتے تھے، کسی بھی فریادی کو بے مراد نہیں لوٹاتے تھے، مگر یہاں انہوں نے اپنے معاشرے کے مطابق، اپنی عزت اور ناموس کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف جا کر سخت معاملہ آپ کے ساتھ کیا، آپ کو بہت ہی سخت سست کہا، آپ کے شان میں بہت ہی زیادہ گستاخیاں کی ہیں، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ جب آپ وہاں سے مایوس واپس تشریف لا رہے تھے تو ان لوگوں نے شہر کے نوجوان اور باشوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ چنانچہ وہ آپ پر پتھر مارتے تھے، آپ کے پیروں کو انہوں نے لہو لہان کر دیا، آپ کے پورے جسم کو زخم سے تربتر کر دیا، آپ کا جسم اطہر خون میں ڈوب گیا۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے جسم پر آپ کے اوپر پڑنے والے پتھر کو روکتے ہیں، ان کا بھی سر لہو لہان ہو جاتا ہے، ان کے بھی پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کے ایک طویل دعا حدیث کی کتابوں میں اس موقع پر لکھی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ کیا آپ نے مجھے ایسے دشمن کے حوالے کر دیا؟ ان چند کلمات کے بعد آپ تشریف لے آئے اور آگے جب بڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، سلام کیا اور کہا کہ رب العالمین نے آپ کی فریاد سن لی ہے، اب میرے ساتھ ملک الجبال موجود ہے،
पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, अगर आप इसे हुक्म करें तो ये आपकी बात सुनेगा। मलकुल जिबाल हाजिर हुआ, उसने सलाम किया और आपने जवाब दिया। मलकुल जिबाल ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे कहा है अगर आप इजाजत दें, अगर आप हुक्म करें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिला दूं जिनके बीच में रहने वाली ये दो बस्तियां मक्का और ताइफ ये पिस जाएं। आप फरमाए कि नहीं, छोड़ दो, उम्मीद है कि ये नहीं तो इनकी नस्ल में कोई आएगा जो ईमान ले आएगा और अहले इस्लाम का मददगार बनेगा। नाज़रीन किराम, ये वो सख्त मौका है जब आप, एक तो आप नबी हैं, दूसरे आप मुसाफिर हैं, तीसरे आप मजलूम हैं, आपकी बद्दुआ की कबूलियत में कोई भी माने नहीं थी। आप जरा सा ही बद्दुआ फरमा देते, ये पूरी की पूरी बस्ती हलाक बर्बाद हो जाती। शायर कहता है, बेतरस अज आहे मजलूमा कि हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दरे हक बहर इस्तकबाल में आयत। मजलूमों की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि जिस वक्त ये बद्दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला के दरबार से कबूलियत लपकने के लिए आती है, इनके इस्तकबाल को आती है। यह मौका था जब आप अपने जान के दुश्मनों को तय कर सकते थे, हलाक बर्बाद करने की बद्दुआ कर सकते थे। मिनटों में उनका वजूद बिखर जाता, वो सफाए हस्ती से नेस्त नाबूद हो जाते। लेकिन आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आपके सामने एक अजीम मिशन था। आपके सामने बस मिशन ये था कि इस्लाम फैलता जाए, फलता जाए, ईमान की दावत बढ़ती चली जाए। इस वाक़े से तमाम मुसलमानों को, और मुसलमानों ही के नहीं बल्कि तमाम कौम के अजीम मिशन रखने वालों को ये सबक मिलता है कि जो अजीम मिशन लेकर चलता है उसके सामने अपने वजूद का मसला नहीं होता, बल्कि उसके सामने मिशन की तकमील का मसला होता है। मिशन कैसे आगे बढ़े, दावत कैसे आगे बढ़े और उसके मंसूबे में कैसे मजबूती आवे, ये चीज उसके पेश नजर रहती है। कौन उसको बुरा कहता है, कौन भला कहता है, ये चीज उसके सामने नहीं रहती। इसी तरह नाज़रीन किराम, आप देखें फतेह मक्का का मौका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। मक्का फतह करने के लिए मक्का में मुसलमानों का काफिला दाखिल होता है। अबू सुफियान से मुलाकात होती है। ये वही अबू सुफियान हैं जो बद्र से लेकर फतेह मक्का से पहले तक हर जंग में, हर एक गजवा में, हर एक सरिया में उनका वो अपने वजूद के साथ या अपने माली ताउन के साथ या किसी न किसी तरह से उनकी शिरकत रही है। मुसलमानों को, ईमान को और दीन को इस जमीन से खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोशिशें रही हैं, सबसे ज्यादा कारस्तानियां अगर रही हैं तो वो अबू सुफियान की रही है। लेकिन इस मौके पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को अपने पनाह में लेकर आते हैं। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अबू सुफियान, क्या तुमको अभी भी शुबहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? वो कहते हैं कि नहीं, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। फिर आप पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी शुबहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आप गौर फरमाइए, आप मक्का में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का लश्कर जर्रा लेकर मक्का मुकर्रमा में आए हैं और मक्का तक फतह होने को है, लश्कर जर्रा मक्का में दाखिल होने को है। इनकार करने वालों के सर कलम कर दिए जाएंगे, मिनटों में उनको सफाया हो जाएगा। अबू सुफियान ऐसे वक्त में भी कहते हैं कि हाँ, जरा सा मुझे तरद्दुद है कि आप अल्लाह के रसूल हैं या नहीं। आप फरमाए कि उनको छोड़ दो, इनको ले जाओ। फिर अब हज़रत अब्बास ने समझाया, अलगरज उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, जब मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, अब यहाँ यह मौका है कि 10 साल की 13 साल की दुश्मनियां निकाल ली जाएं। हज़रत साद ने फरमाया कि अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन है। अबू सुफियान ने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या ये अंसार, क्या मदीने के लोग आपकी कौम को तहत करेंगे, आपकी कौम को बर्बाद करेंगे? आप फरमाया कि नहीं, कदब सादुन, साद ने गलत बात कही। आज तो वो दिन है, अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम तुअज़्ज़मुल काबा, अल-यौम तुक्सल काबा, आज तो काबा की ताजीम की जाएगी, आज तो काबा को चादर पहनाई जाएगी। मेरे भाइयों, ये मौका है जब आप चाहते तो आप अपने पुराने दुश्मनों को, सहाबा के दुश्मनों को, जिन्होंने बिलाल को सताया, जिन्होंने अम्मार को सताया, जिन्होंने सुमैया के बरछे मारे, जिन्होंने सहाबा को वतन से बेवतन होने पर मजबूर किया, जिन्होंने उमरा नहीं करने दिया, हुदैबिया के मौके पर सुलह हुदैबिया का मौका पेश आया और उमरा करने के इरादे से सहाबा तशरीफ लाए थे, नाकाम वापिस चले गए, उन तमाम दुश्मनों से
इंतकाम लेने का मौका था, लेकिन कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ऐलान आम फरमाते हैं, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमान, जो काबा में जो हरम में दाखिल हो जाए उसको अमान, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको अमान। गर्जे की दुश्मनों को आम माफी का परवाना मिल गया, उनके दरमियान में आम माफी का ऐलान हो गया। मेरे भाइयों, ये बात तमाम मुसलमानों को समझने की है कि अपने मिशन की तकमील में कभी भी अपनी जात को मसला बना कर रखने से मिशन में नुकसान होता है। और ये सबक हमारे ही लिए नहीं, दुनिया की तमाम कौमों के लिए है कि जिसने अपने दुश्मनों को इस कदर आम माफी का ऐलान दे दिया और जिसने अपने दुश्मनों के साथ ये हुस्न सलूक किया, आज दुनिया कैसी नादान हो चुकी है और तारीख को न जानने वाले, बुग़्ज़ व इनाद सीने में भरने वाले किस कदर नादान हो चुके हैं, जो ऐसी पाकीदा हस्ती पर भी कीचड़ उछालते हुए नहीं चूकते हैं। उनकी जबान सह नहीं जाती है, उनकी जबान में कीड़े नहीं पड़ जाते हैं, जो ऐसी पाकीदा हस्ती पर वो क्या जुमले कसते हैं और आपकी शान में गुस्ताखियां करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तमाम अहले इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा आपकी जिंदगी के तमाम मराहिल अपनी जिंदगी के लिए नमूना है, उसवा है कि जब हम दोस्तों के साथ रहें तो कैसे रहें, दुश्मनों के साथ तो रहें तो कैसे रहें। दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक करने से हमारा मिशन, हमारा तबलीग इस्लाम के मिशन और ईमान और तौहीद के मिशन फलता रहेगा, फैलता रहेगा, पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसके खिलाफ अगर हम इंतकामी कार्रवाइयों में मशगूल रहेंगे तो हम खुद भी सिमट जाएंगे, हमारा मिशन भी सिमट जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।